Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headline first. Domestic indices logged modest gains led by banking sector stocks. Sensex closes at 51,115. Nifty settles at 15,338. Global equity markets trade mixed and rupee appreciates 19 paise against the US dollar. बैंकिंग सेक्टर की अगुवाई में घरेलू शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 51,115 पर हुआ बंद। निफ्टी 15,338 पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिला जुला रुख दिखा और $1 की तुलना में रुपया 19 पैसे मजबूत हुआ। राष्ट्रीय बाजारों में मिले जुले रुख के बीच बैंकिंग सेक्टर की अगुवाई में घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी बनी रही और प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 98 अंक बढ़कर 51,115 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक बढ़कर 15,338 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों की शेयरों की लिवाली अच्छी रही। सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.54% लाभ के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.34% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today closed with modest gains of 0.2%, led by banking sector stocks. Domestic stocks appreciated amid mixed global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 98 points to close at 51,115. The Nifty at the National Stock Exchange also added 36 points to settle at 15,338. In the BSE broader market, the mid-cap index climbed 0.54% and the small-cap index appreciated 0.34%. In the Sensex pack, shares of 19 companies climbed while 11 logged losses. SBI was the top gainer as it climbed 2.8%, followed by Kotak Bank, which gained 2.2%. Axis Bank climbed 2.1%, Bajaj Auto surged 1.9%, and Ultratech Cement rose 1.5%. In losers, HDFC tumbled 2.4%, Bajaj Finance plunged 1.5%, and ONGC declined 1.3%. Bharti Airtel and Hindustan Unilever both rose 1.1%. In sectoral indices, 15 out of 19 sectors climbed. The banking sector was the top gainer as it added 1.2%, followed by consumer durables sector stocks which gained 1.1%. Power and utilities both rose 0.9%. IT added 0.8%, while metal and capital goods both appreciated 0.7%. In sectors which logged losses, realty declined 1.1% and telecom fell 0.7%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,753 companies gained while 1,179 declined. Shares of 141 companies remained unchanged. Well, Dr. Sharma, welcome to the show. Yeah, thank you.
Dr. Sharma, what other factors you think at 51,000 plus is a real, it builds up the confidence for the common man. If, I always say that if this is a reflective of our economy, then what is there to complain? Yet, what are the factors do you think which has brought us to 51,000 plus at the Sensex? Yes, markets are now looking very, very lucrative at this juncture because there are many positives for the markets. First is deceleration in the coronavirus cases, which were very, very high in the month of April and first half of May also. So now the cases are subsiding, and at the global level also, there is a good move in the global markets, and that's why liquidity factor is very much intact for the markets, for the stock markets particularly. And second is the rupee. Rupee is also stabilizing because earlier there were fears that imports will rise, and there are a lot of speculation in the rupee, and rupee was decelerating. But now the imports are not happening that much in the higher trajectory, and we are improving in the export segment, and exports growth was 60% for the month of March. So that's why all these factors are supporting the market at this juncture with the liquidity support from the international market and policy reforms at the domestic front by the Reserve Bank of India. Like they are very, very accommodative. Though inflation is high, WPI inflation is high in the double digits, but still RBI is very, very supportive and accommodative for the growth trajectory of Indian economy, which is anticipated to grow in the double digits by the IMF and the Indian government. So moving forward, I believe if the cases are again subsiding and policy support continues, and there are reforms, more and more reforms for the majorly for the MSME sector, I believe markets have much potential to move forward and to make new highs in the coming times. डॉक्टर शर्मा, आज बैंकिंग सेक्टर में खासी तेजी देखी गई है। भारतीय स्टेट बैंक को भी अच्छा खासा कह लें कि इसके शेयरों को मुनाफा हुआ है, लगभग 3% के आसपास। कोटक बैंक है वो 2% से ऊपर उठ के इसके शेयर बंद हुए हैं। एक्सिस बैंक में भी तेजी है। बैंकिंग सेक्टर में आज की तेजी के पीछे कोई खास कारण, या इसे सहज हम बाजार की घटना माने? देखिए, एक तो जो पॉजिटिव एक मूव आई है कि आरबीआई ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी है कि जो अभी का कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, जो लास्ट ईयर के इम्पैक्ट से वो कम है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन हैं वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है। जो लॉकडाउन है बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से, अगर आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बंद नहीं हुई है। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्री है, वो एकदम से अपनी रफ्तार में है। वहां पे कामकाज हो रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम हो रहे हैं। तो लास्ट ईयर जैसे कंप्लीट लॉकडाउन देखा गया था लगभग 2 महीने का, जहां पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, तो उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ था। और फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ था वो 24% डिसेलरेट हुआ। लेकिन इस बार क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी टोटली ठप नहीं हुआ। कुछ स्टेट में जहां पे लॉकडाउन भी हुए हैं वो भी बहुत ही एक कैलिब्रेटेड है, मतलब लिबरल, जहां पे लोगों को ये भी इजाजत रही है कि अगर वो बहुत ही जरूरी समझे तो घर से निकल सकते हैं। तो काफी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो होती रही है। तो जो जीडीपी है फर्स्ट क्वार्टर में वो बहुत अच्छे पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में रहेगा। डबल डिजिट में तो हमारा जो जीडीपी है फर्स्ट क्वार्टर का वो रहेगा, क्योंकि एक बेस इफेक्ट भी है। लास्ट ईयर ये -24 था, तो इस टाइम पे एंटिसिपेशन तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी जो थोड़ा सा एक असर आएगा जो पार्शियल लॉकडाउन की वजह से कह लीजिए, या फिर थोड़ा बहुत जो महाराष्ट्र और दिल्ली में जो एक कर्फ्यू सिचुएशन रही है जो 1 महीने से भी ज्यादा के टाइम के लिए, उसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन फिर भी हम डबल डिजिट में ग्रो कर पाएंगे फर्स्ट क्वार्टर में, ये तो तय है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो मार्केट्स का रुख है वो वापस एक बुलिश मोड में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो केसेस कम हो रहे हैं और दूसरा जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फोरकास्टिंग करती हैं, जो हमारे जैसे रिजर्व बैंक का एक फोरकास्ट रहता है कि हम किस तरीके से ग्रो कर पाएंगे, इम्पैक्ट एनालिसिस रहता है। तो आरबीआई की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है कि इस बार का जो इम्पैक्ट है बहुत कम रहेगा, तो उससे मार्केट्स को बहुत सपोर्ट मिली है। और आने वाले टाइम में अगर केसेस और कम होते हैं तो मार्केट्स एक न्यू हाई बनाने के दौर में है।
Yes, sir. I think we can take comfort from the fact that the corona cases are coming down and there is an increased capacity building as far as vaccines are concerned. We are also moving towards an Atmanirbhar Bharat. A lot of good news is also coming our way. Now, do you think that the industry, you are associated with the industry, sir, and we see that they are expecting fiscal stimulus from the government. Some people are saying that it must also start from the bottom of the pyramid. What are your views on this? Is that going to affect the markets? There are murmurs that there is going to be a fiscal stimulus coming out. Yes, industry is seeking fiscal stimulus or supportive stimulus, like in terms of some respite in the loan scenario, some reduced rate of interest for the vulnerable sectors like MSME and extended credit line. Like last year, government provided 3 lakh crore emergency credit line. Yes. Now, industry is seeking that this should continue and the amount should be doubled to the 6 lakh crore. So that will be a great respite for the industry, and they will be able to get more and more benefit from this scheme if the scheme is extended for 1 more year. So now industry is in the interest of that government should come out with a supportive stimulus, because now the economic activity, though there are partial lockdowns, but the economic activity is impacted. Majorly the MSME sector. They are feeling some working capital squeezing, and demand is not happening. Inventories are piled up. So that's why MSME sector is in the most vulnerable situation at this juncture. So they want some support from the government to move forward in terms of expansion in the working capital, in terms of some relief in the loan scenario, some extended credit line. So all these reforms are needed at this juncture to move forward with a good growth trajectory, which is anticipated by the many institutions that we will grow in the double digits. That will happen only if the support comes from the government side at this juncture to move forward. Yeah, considering the fact that MSME sector contributes a lot to the GDP of the country. Yes, MSME sector contributes around 31% in the GDP, of which 23 comes from the services sector and around 8% comes from the manufacturing sector. So now, because definition of MSME sector is also revised, so the share of the MSME sector will increase. But the sector needs a lot of support from the government to become more and more strong and to participate more and more in the growth trajectory of the Indian economy. डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि जो एमएसएमईज हैं उन्हें सरकार की ओर से सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि वो अर्थव्यवस्था में अपना पूरा योगदान दे सकें। इस बार जैसे कि हम प्रवृत्ति देख रहे हैं, कुछ विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है कि तीसरी वेव भी कोरोना की आ सकती है। ऐसे में लॉकडाउन आंशिक लग रहा है, आपने बताया, और हमने देखा भी है कि विभिन्न स्थानों पर जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, पूरी तरह ठप नहीं हुई हैं। ऐसे में जो छोटे और मझोले उद्यमी हैं, उद्योग हैं, उनके लिए क्या योजनाओं की अपेक्षा आप सरकार से करेंगे? किस तरह के वित्तीय प्रोत्साहन और सरकारी सहायता की अपेक्षा आप करेंगे ताकि उनकी माली हालत में बेहतरी हो, वर्किंग कैपिटल उनके पास पहुंच सके और वे यानी बेहतर कह लें योगदान दे सकें अर्थव्यवस्था को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। एक तो जो आपने थर्ड वेव की बात की है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी सेकंड वेव ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। खासकर हमें 3-4 चीजें जो है आने वाले टाइम में इंटैक्ट रखनी होंगी। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आईसीयू बेड्स की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि जो केसेस हैं, जो पहले का फर्स्ट वेव में केसेस इतने सीरियस नहीं होते थे, तो अभी सेकेंड वेव में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनको आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ी है। और तीसरा, जो इंक्रीज्ड बेड सिस्टम, जो बेड्स हैं उनमें और ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। किसी को भी जब कोई ऐसी महामारी आती है, किसी को भी तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो उसको कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तो जगह मिलनी चाहिए। ये तो 3 चीजें इंश्योर करके चलनी होगी कि हम थर्ड वेव, अगर हम आशा करते हैं कि ऐसी वेव ना आए, लेकिन फिर भी अगर आती है तो हमें इन 3 चीजों को लेकर तैयार रहना पड़ेगा। और दूसरा, जो आपने प्रश्न किया कि एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का, जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर जो है वो एमएसएमई सेक्टर ही रहेगा। इसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है और आने वाले टाइम में इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में बहुत इंक्रीज होगा। और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल में
जो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 50% से ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि एक तो इनका सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है तो वो वर्किंग कैपिटल को लेके रहती है, जो लिक्विडिटी सिस्टम है और जो लोन डिसबर्समेंट्स हैं उनसे भी ज्यादा, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो काफी रिलक्टेंट रहते हैं एमएसएमईज को लोन देने के ऊपर। काफी जो कोलेटरल्स हैं उनकी डिमांड की जाती है, सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, लेकिन उसका भरपूर जो बेनिफिट है वो एमएसएमईज को नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास कोलेटरल के लिए कोई इतने संसाधन नहीं होते हैं। तो कोई ऐसी पॉलिसी सरकार को लेके आनी होगी कि उनको जो डिसबर्सल्स हैं, जो लोन सैंक्शंस हैं, वो इंटैक्ट रहें। जब भी उनको कुछ जरूरत है, जब भी उनका कुछ एलिजिबिलिटी है तो उनको लोन मिल जाना चाहिए। मतलब उनको बहुत ज्यादा मुशक्कत करने के बावजूद भी कई बार लोन नहीं मिल पाता है। तो एक तो ये चीज अगर इंश्योर हो जाए कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं उनके अनुसार ही बैंकिंग सेक्टर भी आगे डिसबर्स कर रहा है, सैंक्शन कर रहा है, एमएसएमईज के पास पर्याप्त मात्रा में जो उनको जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो अवेलेबल है, तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एमएसएमईज के पास ग्रो करने का। वो डबल डिजिट में अपना हर एक साल अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, 1-2 साल के लिए नहीं, आने वाले 20 साल के लिए वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। और इंडिया की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, जो हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जो है वो 20% होना चाहिए, 25% तक जाना चाहिए, तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम एमएसएमईज को सपोर्ट करेंगे, जब एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ेगा। जब वो अभी 8% है, ये बढ़ के कम से कम 25% तक जाना चाहिए, तभी जाके जो हमारी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो स्ट्रांग होगी और एक सस्टेनेबल ग्रोथ हम देख पाएंगे। So, you rightly said this government has always highlighted the importance, the significance of banks. At one point, we even said that if the people can't go to the banks, let the banks go to the people. And they have played a very, very important role in the economy in the last few years. Rightly said that. But so let's take a look at the rural India. In the first wave that we had, the rural India was not impacted because the tractor sales were going up and the demand was there. In the second wave, as we see now, rural India is impacted. How do you see that affecting the economy of the country? Because 60% or maybe more, happens economies or people, 70% of people are there in the rural areas of our country. Yes, that is true that more and more participation is from the rural sector, and around more than 60% people still live in the rural areas. So now the coronavirus is impacting the rural segment also. That will impact the demand trajectory, and overall economic growth trajectory is also going to be impacted with this third wave. That is true that earlier we had anticipation that we will grow around somewhere between 11 to 12%, but now the most of the forecasting agencies are reducing their growth forecast in the single digits. But now during the last few days, during the last 1 week, I believe there is a deceleration in the rural segment also, because now the total number of cases are decelerating significantly. So if this move is stopped here, the coronavirus cases are again declining, and in the next 10 to 15 days, the cases are less than 1 lakh. I believe there will be little impact on the overall economic growth, because demand will not be killed, but the demand will be postponed. So if the corona cases are decelerating, then I believe impact will be there, but a very, very minuscule impact will be on the economic growth. That sounds quite optimistic. डॉक्टर शर्मा, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि डिमांड रुकी हुई दिख रही है क्योंकि इसे पोस्टपोन किया गया है, ये खत्म नहीं हुआ है, यानी कुछ काल के लिए स्थगित हुआ है। तो किन किन क्षेत्रों में, यानी कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है कि डिमांड उभर के आने वाले दिनों में कोरोना की स्थिति जैसे ही थोड़ी बेहतर होती है तो वहां से डिमांड निकलेगी और वो सेक्टर अर्थव्यवस्था की गति को आगे बढ़ाने में सहायक होगा? देखिए, जो सरकार ने पिछले 1 साल में जो रिफॉर्म्स की हैं, वो रिफॉर्म्स बहुत ही इंटेक्ट थी, बहुत ही कैलिब्रेटेड तरीके से रिफॉर्म्स की गई थी और उनका सपोर्ट आना शुरू हो गया था। जनवरी फरवरी में बहुत अच्छी ट्रैजेक्टरी हमने देखी है, ग्रोथ एकदम से इंटेक्ट थी और आने वाले टाइम में ग्रोथ के एक
स्पीड पकड़ने के आसार थे, लेकिन ये कोरोना के केसेस से डिमांड में एक ब्रेक लगा है। खासकर जो ऑटो सेक्टर का डिमांड है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। लोगों ने उसको पोस्टपोन किया है कि वापस कोरोना एकदम से गति पकड़ गया है। लोगों को शायद जो उनके प्लान्स थे कार खरीदने के या फिर किसानों के ट्रैक्टर खरीदने के, वो पोस्टपोन हो गए। तो लेकिन वो खत्म नहीं हुए। अभी जैसे ही वापस केसेस कम होंगे तो डिमांड फिर वापस इंटैक्ट हो जाएगी। मैं समझता हूं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड है वो वापस एक बहुत तेजी से उभरेगी और जो एकदम से इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। और जो पेरिशेबल्स में और खासकर जो एफएमसीजी सेक्टर है, इसके लिए मैं समझता हूं कि डिमांड वापस उसी लेवल पे चली जाएगी जिस लेवल पे हमने इसको दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में देखा है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 19 पैसे मजबूत हुआ, 72 रुपए 59 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.05% घटकर 90 पर आ गया। डॉक्टर शर्मा, रुपए के प्रदर्शन पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि रुपया अब किस दिशा में जाता दिख रहा, यह स्थिर होता नजर आ रहा या इसमें फिर से एक बार तेज जो उतार हमने देखा था उसके आसार लग रहे आपको? देखिए, जो पीछे हमने देखा था कि रूपी डेप्रिशिएट हो रहा था और काफी वरीज थी, क्योंकि रूपी का डेप्रिशिएट होना बहुत तेज गति से या फिर एप्रिशिएट होना, वो दोनों ही स्थिति जो है लाभकारी नहीं होते हैं। खासकर क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर भी हैं और हम एक्सपोर्ट्स को भी अपना कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी हमने देखा है कि रूपी के लिए जो नेगेटिव फैक्टर थे, खासकर एक तो जो इंपोर्ट बढ़ने का जो एक ऐसा था कि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और इंपोर्ट ज्यादा बढ़ेंगे, तो उसका एक नेगेटिव असर हो रहा था। और दूसरा जो इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ना शुरू हुआ, तो लेकिन अभी बेस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि लास्ट ईयर इन्फ्लेशन नेगेटिव में था, WPI इन्फ्लेशन, तो उसकी वजह से बेस इफेक्ट की वजह से जो इन्फ्लेशन है डबल डिजिट में है। और तीसरा था कि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस भी काफी तेज गति से बढ़ रहे थे। तो अभी जैसे ही पता चला कि हमारे इम्पोर्ट कह लीजिए कि लॉकडाउन की वजह से या फिर डिमांड में स्लोडाउन की वजह से इम्पोर्ट काफी तेज गति से नहीं बढ़ पाए हैं, जिस वजह से रूपी को काफी स्थिरता मिली है कि रूपी के ऊपर प्रेशर नहीं आया है। तो ये कुछ कारण हैं जिस वजह से रूपी वापस स्टेबल हुआ है। जैसे कि अभी हमारे ग्रोथ एंटिसिपेशन है कि हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे और बहुत सारी रिफॉर्म्स हो रही हैं और जो कैपिटल फ्लोज हैं बहुत इंटैक्ट है। और खासकर जो हमने FDI अट्रैक्ट किया है, जो कि $81 अरब का हमने FDI अट्रैक्ट किया है लास्ट ईयर में, जो कि कोरोना ईयर था, फिर भी हमने $81 अरब का FDI, उससे रूपी को बहुत मजबूती मिली है। तो आने वाले टाइम में भी रूपी जो है वो स्टेबल रहेगा और जो पॉजिटिव बायस रहेगा, मतलब रूपी और ज्यादा एप्रिशिएट हो सकता है इस लेवल से। आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। चीन से फैक्ट्री उत्पादन के आंकड़े उम्मीद से कम रहे। इसके अलावा चीन में इंटरनेट संबंधित कंपनियों पर सरकारी शिकंजा लगाए जाने की आशंका भी देखने को मिली। इन सब से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो NBS के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI घटकर 51.1 पर आ गया। उत्पादन में आपूर्ति संबंधी बाधाएं तथा विदेशों से मांग घटने से ये कमी आई। उधर अमेरिकी शेयर बाजार से सकारात्मक संकेत निवेशकर्ताओं को मिले, जिसका अनुकूल असर शेयर बाजार पर एशिया में आज दिखा। इन सबके बीच सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स कारोबार के अंत में 0.6% लाभ के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंग सेंग, जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% तक घाटे के साथ बंद हुए। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख बना हुआ था।
अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों सूचकांक 0.3% नीचे चल रहे थे। उधर फ्रांस का CAC 40 0.5% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। And a look at the U.S. markets now. Well, the U.S. stocks rose marginally yesterday after remarks from Federal Reserve officials helped ease worries about higher inflation. Recent dip in bond yields also supported tech-related stocks. Apple Inc., Amazon.com Inc., and Alphabet Inc. added between 0.2 to 0.5% after the yield on the benchmark 10-year Treasury note stood at more than two-week lows of 1.552%. The Dow Jones Industrial Average ended flat, while the S&P 500 rose 0.2%. The Nasdaq Composite Index climbed 0.6%. डॉक्टर शर्मा, हम अमेरिका की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि फेडरल रिजर्व की जो ये टिप्पणी आई है मुद्रास्फीति संबंधी, उससे किस तरह वहां की अर्थव्यवस्था को और कह लें कि हमारे यहाँ के शेयर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है। साथ ही बॉन्ड यील्ड में कमी आई है, इनका क्या असर पड़ेगा हमारे यहाँ के शेयर बाजार पर? देखिए, जो यूएस में इन्फ्लेशन है वो एक एंटीसिपेटेड जो रेट था, जो 2% के आसपास फेड का एक अनुमान था कि यहां तक वो टॉलरेट कर सकते हैं, ये थोड़ा इससे ऊपर भी टॉलरेट हो सकता है, लेकिन ये तो काफी 13 ईयर हाई चला गया है। 4.5% तक जाना तो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वेज रेट उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। अगर वेज रेट बढ़ेगा तब नहीं तो डिमांड स्क्वीज होगी। अगर इन्फ्लेशन खाली बढ़ेगा तो वेजेस नहीं बढ़ेंगे तो डिमांड स्क्वीज होती है। तो इस जंक्शन पे हो सकता है फेड थोड़ा सा पॉज ले। आने वाले टाइम में लिक्विडिटी जो यूएस ने एक अथाह लिक्विडिटी क्रिएट की पूरे वर्ल्ड में, तो शायद आने वाले टाइम में, क्योंकि अब केसेस भी कम हो गए हैं, कोरोना का जो इम्पैक्ट है यूएस में तो खास करके काफी डिसेलरेट हो गया है, तो जो लिक्विडिटी सपोर्ट है शायद आने वाले टाइम में ना रहे, उसका एक आंशिक असर। शुरू में तो मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रहेंगी, मार्केट्स में एक तेज बिकवाली आ सकती है, लेकिन मार्केट जो है वो अपने कंट्री के अपने जो रिस्पेक्टिव फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर चलती हैं और मनी भी वहीं पे मूव करती है जहां पे ग्रोथ होती है। तो हमारे पास सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो मनी विल रिमेन अट्रैक्टेड। हमारे पास जो कैपिटल फ्लो है वो कंटिन्यू रहेगा, कोई ऐसा नेगेटिव असर आने वाला नहीं है, लेकिन मार्केट्स वॉलेटाइल जरूर हो सकती है। Well, the Finance Minister Nirmala Sitharaman would chair the 43rd GST Council meeting through video conferencing at 11 a.m. in New Delhi tomorrow. The meeting will be attended by Minister of State for Finance Anurag Thakur. Finance ministers of states and union territories and senior officers from the union government and the states will also participate in the meeting. The last 42nd GST Council meeting was held on the 5th of October last year. During the meeting, several key recommendations were made, like releasing of compensation to states and further simplifying the GST return filing system to reduce the compliance burden on taxpayers. So what are your views on this? Because there are some products which may come under the GST and some which may be exempted considering the COVID situation. A brief comment on this, please. Our biggest expectation is that petroleum products should come under the ambit of GST, because these are impacting significantly the price cost margins of the businesses and impacting the common man also. So prices are very, very high of the diesel and petrol. So all these items should come under the ambit of GST. That is our biggest expectation from the Honorable Finance Minister. Right. A look at oil now. Well, oil prices today dipped as concern about demand in India and the potential for a rise in Iranian supplies offset optimism over the US and European summer driving season. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $68.40 per barrel, while WTI crude prices were around $65.80 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के रुख के बाद भी घरेलू शेयर बाजार में आज सोने के मूल्यों में नरमी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 200 रुपए घटा 48,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। उधर चांदी भी 400 रुपए फिसलकर 71,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई। उधर न्यूयॉर्क में मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य बढ़कर $1,909 प्रति आउंस और चांदी $28.20 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गई। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी शुक्रिया, थैंक यू। And friends, before we close, a reminder of the headlines.
Domestic indices log modest gains led by banking sector stocks. Sensex closes at 51,115. Nifty settles at 15,338. Global equity markets trade mixed and rupee appreciates 19 paise against the US dollar. And with that, we come to the end of this session of this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak signing off. Namaskar. Market Mantra.